The COVID pandemic has been an unprecedented calamity throughout the world. The economic aftermath has been more damaging than the disease itself. In India, the abrupt nationwide lockdown threw millions out of work. With no income to sustain and little relief from the government, people quickly ran out of food and other basic necessities. ये बीमारी ना बढ़े इसके लिए पूरे देश में 3 चरणों में लॉकडाउन कर दिया गया बिना किसी तैयारी के। गांवों से शहर कमाने गए मजदूर जो जहां थे वहीं फंस गए। घरों में खाना नहीं था, लोग बेबस होकर पैदल ही लौटने को मजबूर हो गए। आदिवासी लोगों की, मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वो लोग कहीं जा नहीं सके, उनको समय से कोई मजदूरी नहीं मिली। दफ्तरों में भी लोग नहीं जाने से इनके महिलाओं की, विकलांगों की पेंशन नहीं डली। राशन डीलरों द्वारा उनको राशन का भुगतान नहीं किया। नरेगा का भुगतान नहीं हुआ, नरेगा काम बंद हो गया। जो छोटे किसान हैं उनके फसलों के भाव गिर गए। Workers had no choice but to return to where they came from. With the transport system completely shut down, their desperate attempts to leave the cities created an appalling spectacle that exposed the sad state of the Indian working class. Moved by their plight, ordinary citizens, as well as many voluntary organizations, came forward to help in great numbers. IFA fellows and project partners took leadership role in such relief work. Food and virus protection was the most immediate need. Thousands of emergency kits containing food items, soap, sanitizers, etc. were distributed. Community kitchens were set up to provide free meals. Between Prakash Kumar's Sajag Society and Faisal Khan's Khudai Khidmatgar, over 130,000 cooked meals and over 25,000 ration kits were provided in and around Delhi just in the month of May. Similar efforts were undertaken by other fellows all across India, from urban bastis to far-flung villages. Awareness building regarding virus protection, such as social distancing, use of masks, sanitizers, etc., was also taken up. Over 300,000 masks were distributed in Odisha alone. In Uttarakhand, the Vimersh group responded to the women's needs by adding sanitary napkins to their relief kits. Similar efforts were made in Kashmir. On the other front, the activists joined efforts to help the workers reach home. This included networking to identify the stranded, providing information about transportation options, and, wherever possible, arranging for direct transportation. छत्तीसगढ़ से जो आए हैं उन लोगों को हम लेने आए हैं और लेके हम जा रहे हैं भवानीपटना और भवानीपटना से जगदलपुर छोड़ेंगे। तो जगदलपुर से वो 14 दिन रहेंगे, फिर उसके बाद उनके गांव चलेंगे। यह पता लगाने की कोशिश की है कि कौन लोग बाहर गए हुए हैं, उनके फ़ोन नंबर लिए गए। अपने संपर्क नंबर हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किए। एक तो सरकार को हम इन सब परेशानियों से अवगत कराते थे और दूसरी तरफ जो सिविल सोसाइटी देश के अलग अलग नेटवर्क्स में जुड़े हुए हैं उनके साथ में साझा करते थे, उनके जरिए उन तक मदद पहुंचाई गई। लोगों को उनके किराए की व्यवस्था की गई, खाने के लिए राहत सामग्री के पैकेट दिए गए। अभी हम लोग जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बिल्कुल धंधा ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने के कगार पे है, जैसे मछली बेचने वाले, बाल काटने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग, तो ऐसे लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये। A key intervention was to help people avail of the resources made available by the government. The Sankalp people, for example, ensured
that 35,000 cardholders received their full relief rations. ये सर्वे निकाल करके टीएन की भूखन मरने की स्थिति है, यहाँ के विकास अधिकारी जी को दिया और दबाव डाला खातों में जो भी पेंशन है नरेगा, और वो धीरे धीरे डरने लगे। और राशन डीलरों द्वारा भी डीलर बदमाशी कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने निगरानी करने की कोशिश की और करीब वो 50 से ऊपर डीलर पर कार्रवाई हुई है काला बाजारी के इसमें। कोसिनो निर्माण मंच के यहाँ के टीम के साथियों ने IFA से मिले सहयोग से सभी ने अनेक जगह काम किया। बाहर फंसे मजदूर जहाँ खाना नहीं मिलता था, कोई सरकारी मदद नहीं, उनको विभिन्न संगठनों से कोऑर्डिनेशन करके मंगाने ले जाने सबकी व्यवस्था कराए। To augment these efforts, activists leveraged IFA funds to raise contributions locally. तो अलग अलग लोगों से चंदा के जरिए, अपील के जरिए Over $1 million was raised by just 3 groups alone in the first 2 months. Such efforts were widely appreciated and recognized. IFA fellow Prakash Kumar was appointed member of the Delhi State Coordination Committee on Food. और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे और उनको मदद करने का एक अवसर मिला। जिनके पास दिल्ली में राशन कार्ड नहीं है, सुबह शाम उनको स्कूलों में लाइन लगा करके कुक मिल लेना पड़ता था। कि मैंने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि उनको आप यदि ड्राई राशन दे दोगे तो वो खाना बना सकते हैं और हमारे जो रिलीफ वर्क है एक लोड जो है वो कम हो सकता है। उस आइडिया को समझते हुए उन लोगों ने एक ऐप डेवलप किया और उनके नियर बाई एरिया में ड्राई फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए, जिसमें कि वो जाकर के अपना कूपन के बदले में वहाँ राशन ले सकते थे। इससे 40 लाख लोग दिल्ली के जो है वो बेनिफिटेड हुए। His work was featured in the Times of India. Workers' exodus from the cities has led to its own unique challenges. The quarantine facilities, for instance, are often inadequate, if not just primitive. The fellows have been pressuring the authorities to provide proper facilities, and they have helped returning workers do self-quarantine. हमारे यहाँ टोटल लॉकडाउन के समय में 90 मजदूर आए हैं, जिनको हमने क्वारंटाइन किया है। उनके रहने की और उनकी जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसमें पूरा सहयोग रहा उनका। या तो हम लोगों ने हॉस्पिटल कॉल करके, जिला हॉस्पिटल कॉल करके एक टीम बुलाई, 90 लोगों का जांच करवाया। जो पैसे एक साल में आते थे वो अभी 3 महीने में पूरे पैसे आ चुके हैं लोगों के। पैसे निकालने के लिए छतरपुर या सिटी लेवल पे नहीं जा पा रहे थे लोग, तो उसके लिए हम लोगों ने यहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा चालू की, जिसके तहत हम लोगों ने लॉकडाउन के समय में 8 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया। जो स्ट्रीट वेंडर उनके लिए 10,000 रुपये का ऋण मुहैया करा रही थी सरकार, उसमें हमने अपने गांव से 80 लोगों का पंजीयन किया है। मैंने बगल की पंचायतों में देखा है, वहाँ हमारी संस्था काम नहीं कर रही है, उन लोगों तक उनकी पहुँच नहीं है योजनाओं की, लोग उनसे वंचित रहे। Increasing malnutrition is another outcome of this influx. In a program specifically directed at the children, RIM Madhya Pradesh have provided supplemental nutrition to around 500 children. जो कुपोषित बच्चे थे और अति कुपोषित बच्चे थे, उनके लिए पोषण आहार वितरण किया गया था। वो सभी बच्चे जो कुपोषित थे आज सामान्य स्थिति में आ गए हैं। Lack of employment opportunities is the biggest challenge. आज उनके पास राहत की कोई सामग्री नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास मजदूरी नहीं है। दोहरी मार जो अभी पड़ी है, क्योंकि बिहार के 10 से ऊपर जिलों में भयानक बाढ़ आई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला है। मक्का इधर के 10 जिलों की सबसे मुख्य फसल है। पिछले साल 2000 से 2400 के बीच में रेट था। 1850 भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। सरकार एकदम मुकर गई। उनका लागत सरकार भी मानती है कि 1213 रुपये प्रति क्विंटल आता है। घर में पानी आया, मक्का बर्बाद हो रहा है, तो 900 रुपये क्विंटल पर मक्का बेचने के लिए किसान विवश है। हम लोगों ने उसको लेके लड़ाई लड़ी। अभी लॉकडाउन में अभी सत्याग्रह रुके हुए हैं। Manrega, the much derided rural employment program, has been a godsend. Activists have worked tirelessly to get people job cards and work. एकमात्र विकल्प है उनके पास मनरेगा, लेकिन मनरेगा भी इस बरसात के सीजन में सीमित हो जाता है। मनरेगा बंद था, सरकार ने एकदम बंद कर दिया
सरकार ने तो हमको बहुत रोका, मीटिंग में नहीं जाओगे, पुलिस परेशान कर रही है। तो हमने कहा हम तो हमारे हिसाब से सोशल डिस्टेंस से काम करेंगे और आज की तारीख में साहब कम से कम 22,000 लेबर तहसील किशनगंज शाहबाद में काम कर रही है। Another less talked about effect of the pandemic is mental health, especially of women, children and marginalized communities. The number of domestic violence cases increased. To highlight the situation of the migrant laborers and to make sure they get basic facilities, we wrote to the Labor Department, DC, Jilla Panchayat, CEO. I visited to Mangalore City Corporation and DC office to learn what is the help from the district administration to public. गांव में तो ये स्थिति बन गई थी कि जमातियों द्वारा कोरोना फैलाया गया। मुसलमान साथी को आते देखते तो कहते वो देखो कोरोना आ गया। मुसलमान साथियों से गांव के लोगों ने सब्जी खरीदना तक बंद कर दिया था। जो तथ्यात्मक आंकड़े थे कि जैसे इससे पहले कोरोना तो जनवरी फरवरी में ही आ चुका था। इस तरीके की चर्चाएं जब क्षेत्रीय बैठकों में हमने करी तो थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई। जिन गाँव में संगठन चल रहा है उन गांव में लोग सब्जियां भी खरीदने लगे हैं, लोग बातचीत भी करते हैं, लोगों ने तो जाना भी शुरू कर दिया है भी। तो कई लोगों से जब बातचीत की तो पता चला कि पैदल जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहाँ के मालिक के पास उनका हज़ारों रुपया बाकी पड़ा है। मालिकों ने कहा फैक्ट्री बंद हो गई, अब पैसा कहाँ से दें। 10-10 लोग एक परिवार के काम करते थे तो 10,000 भी हुआ तो भी 1 लाख हो गया। तो उनकी मजबूरी है वापस जाना। और फिर यहाँ भी तो मनरेगा में पूरा काम नहीं है, अस्पतालों में कोरोना के चलते कहीं दवा नहीं है, स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चों की शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया, घरों में खाने को नहीं तो कंप्यूटर, सेल फोन, स्मार्टफोन कहाँ से लाएंगे। यानी अब ये शिक्षा भी गरीबों की न होकर सिर्फ अमीरों की शिक्षा रह गई। Alternative strategies of rural employment are being promoted. The Gram Shri Group, for example, provided kitchen garden kits to 100 families and helped another 70 families develop vegetable cultivation for livelihood. The COVID pandemic has exposed the dire state of livelihoods in India. Given the employment crisis that already existed, it has further strengthened those who have been advocating an alternative to the urbanization-centered mode of development. It is time to invest in rural development so people are not forced to migrate and crowd the cities. This was the promise of the Panchayati Raj, but that promise never materialized. The key to its success was to be the transfer of power to the Gram Sabhas. Sadly, that was and continues to be systematically scuttled by the legislature and the political parties. As a result, the rural sector has been left at the mercy of the handouts that the legislature doles out from time to time, mostly to garner votes. आजादी के बाद इतने लंबे समय तक अब इस क्षेत्र में क्यों विकास नहीं कर रहा? अभी तक हमारे क्षेत्र में जो जितने भी विद्यालय हुए पढ़े हैं उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है और हमारे बच्चे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं गांव के? A group of IFA fellows under the aegis of the Indian Community Activist Network has initiated a movement for strengthening the Gram Sabhas. The goal is to put real power in the hands of the village people so they can utilize their resources to invest in local infrastructure and create a flourishing rural economy. पंचायत राज एक्ट में तो पूरा कानून बना दिया, लेकिन कानून के पालन करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है, जो सक्षम अधिकारी का जो आदेश होगा उसके अनुसार ही पंचायत या ग्राम सभा चलेगा। अपने गांव के विकास के लिए हम अपने जिस तरह से स्वतंत्र रहकर हम काम करेंगे, तो इसके लिए तो सरकार चाहेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे फिर? It will require building the capacity of the rural communities on the one hand and changes in the laws on the other. It is a gigantic task, but a task that must be attempted. It is time to move beyond giving lip service to Gandhiji's ideas and giving them a real chance. This could also help break the unholy nexus
between big money and politicians that is the biggest obstacle preventing the nation from moving forwards and fulfilling its potential. During these trying times, IFA partners are playing a stellar role in relieving suffering. But we are also trying to help advance those ideas that could substantially increase the welfare of the marginalized communities in the long run. If something positive comes out, all this suffering would not have been for nothing.